Bismillahirrahmanirrahim. I am Maryam Abid. Today our topic of discussion is Syncatrium. First of all इसका introduction देख लेते हैं हम. It belongs to order Syncatriales. Almost less than 50% chytrids till date are under this order. यानी Syncatrium order Syncatriales से belong करता है और इसके अंदर less than 50% chytrids involved हैं. In 1973, Sparrow classified chytridiales on the basis of thallus morphology. Sparrow ने in 1973 chytridiales को क्लासीफाई किया on the basis of thallus morphology, यानी उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे, उसकी अपीयरेंस पे उसको क्लासीफाई किया. In 2001, DJ Barr pointed this classification as unsatisfactory as it was observed that same genus can show different morphology under in vivo and in vitro condition. In vivo condition जो होती है वो inside the body हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, और in vitro condition में हम लेबॉर्ट्री में या फिर पेट्री डिश में हम स्टडी करते हैं. Future classification based on zoospore, ultrastructure of DNA and RNA. यानी जो फ्यूचर क्लासिफिकेशन है फंजाई की या कैरिडियोमाइकोटा की, वो बेस करती है जूस्पोर पे, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. जूस्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होती हैं और इनके अंदर एक फ्लेजेलम होता है जो कि हेल्प आउट करता है इनको मूवमेंट में. This is a diagram or picture of Syncatrium under microscope. Now we move towards classification of Syncatrium. Syncatrium belongs to kingdom Fungi, phylum Chytridiomycota, class Chytridiomycetes, order Syncatriales, family Syncatriaceae, and genus Syncatrium. The common names are potato wart disease in English, Gale in Noir, Verrucous Dila Pomeditare in French, Cartofellkrebs in German, and Sarna virgosa Dila patata in Spanish. If we move towards habitat, occurrence or distribution, then we see that Syncatrium typically occurs in moist environment such as temporary swamps, frequently inundated meadows and ditches. अगर हम देखें इसके हैबिटेट, इसकी occurrence या distribution को, तो हम ये नोटिस करते हैं कि Syncatrium बेसिकली moist environment से belong करता है. मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट्स हैं? वो है टेम्परेरी स्वैम्प्स, फ्रीक्वेंटली इनअंडेटेड मीडोज़, यानी वो मीडोज़, वो चरागाहें जिसको वाटर ने कवर किया होता है, और डिचेस और जोहर या छोटे छोटे तालाब वगैरह जो अवेलेबल होते हैं या बन जाते हैं बाय नेचर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू एनी अदर नेचुरल फैक्टर. Syncatrium species have been reported from various habitats from the tropics to the Arctic region. अब वो ये कह रहे हैं कि Syncatrium species जो हैं ये various habitat में रिपोर्ट की गई हैं, यानी from the tropics ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और to the Arctic regions यानी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है. 3 species like S. lecunosum, S. potentile and S. jai are alpine in nature and have been reported to occur abundantly up to 11,500 feet. Syncatrium potentile zoospores have been reported observed swimming in the melted snow. वो ये कह रहे हैं कि Syncatrium की 3 species ऐसी हैं जिसको अल्पाइन नेचर में ग्रो करते हुए या एग्जिस्ट करते हुए देखा गया है. वो यूजुअली 11,500 फीट की बुलंदी पे, एल्टीट्यूड पे फाउंड किए गए हैं, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं
लाइक सिंकेट्रियम पोटेंटाइल, उसके जूस्पोर्स को मेल्टेड स्नो में स्विम करते हुए भी ऑब्जर्व किया गया है। The most favorable condition for its development are warm temperature but not over 20 degrees centigrade with enough humidity। जो most favorable conditions हैं इसके development के लिए, इसकी growth के लिए, वो कह रहे हैं कि वो warm temperatures हैं, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा एक्सीड ना करे और उसके अंदर इनफ ह्यूमिडिटी हो कि वो ग्रो कर सके। ये आपको स्लाइड हेल्प आउट करेगी इसके इन्वायरमेंट को रिमेंबर करने के लिए। एक साइड पे हमारे पास है मीडोज, अनइंडेटेड मीडोज, और दूसरी तरफ हमारे पास डिचेज हैं। Then we move towards thallus of the syncatrium, endobiotic and holocarpic। एंडोबायोटिक थैलस वो होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर इनसाइड द सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, एंड होलोकार्पिक वो होता है जिसके अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों फाउंड करें। ओके स्टूडेंट्स, देन डेवलप्स नो सीलियम, यानी इसके अंदर कोई माइसेलियम नहीं होता। प्रोड्यूस अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर नाउन एज अ विंटर स्पोरेंजियम। ये प्रोड्यूस करता है एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम विंटर स्पोरेंजियम कहते हैं। इट इज़ 25 to 75 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड कंटेन्स 200 to 300 zoospores, is about 0.5 micrometer in diameter and has one posterior flagellum। इसके अंदर 25 to 75 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और इन अमाउंट अगर हम बात करें तो 200 to 300 जूस्पोर्स होते हैं वो फाउंड करते हैं, और उसके अंदर यानी जूस्पोर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम तो जूस्पोर में एक पोस्टीरियर फ्लेजेलम होता है, यानी उसकी बैक साइड पे एक फ्लेजेलम होता है जो उसको हेल्प करता है मूवमेंट में। पोस्टीरियर साइड जो होती है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट पोस्टीरियर साइड जो होती है वो बैक होती है और एंटीरियर साइड जो होती है इन फ्रंट होती है। यूनिसेलुलर थैलस बॉडी, अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ सिंकेट्रियम ऐसे हैं स्पीशीज़ जिनकी थैलस बॉडी है यूनिसेलुलर होती है। स्टूडेंट, यू नो दैट कि यूनिसेलुलर वो बॉडीज़ होती हैं जो वन सेल पे कंसिस्ट कर रही होती हैं, और मोनोसेंट्रिक थैलस बॉडी स्टूडेंट्स वो होती हैं थैलस बॉडीज़ जिनके अंदर ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। Students, it is a diagram or a plant of syncatrium. Now we move towards the reproduction of syncatrium. Basically, there are two ways of reproduction in syncatrium. One is asexual and second is sexual reproduction. Students, the point is to be noted here is that vegetative reproduction is not found in syncatrium. Now we move towards the asexual reproduction of syncatrium. Students, अब ये बात माइंड में रखिएगा कि मेन रोल जो है asexual reproduction में syncatrium में वो resting spores का है। अब हम देख लेते हैं कि resting spore होता क्या है या उसकी characteristics क्या हैं। Spherical, thick-walled, dark brown, folded in the convolutions, यानी वो गोल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, उनकी आउटर सरफेस या आउटर वॉल थिक होती है, डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, फोल्डेड इन कन्वोल्यूशंस, यानी उनके अंदर कन्वोल्यूशंस होती हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपने नोटिस किया होगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कन्वोल्यूटेड है, यानी उसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं। होस्ट हैव रेस्टिंग स्पोर्स प्रेजेंट विद इन देम, यानी वो फंजाई या सिंकेट्रियम जिस भी होस्ट के ऊपर अटैक करती है उस होस्ट के अंदर वो रेस्टिंग स्पोर्स की फॉर्म में
प्रेजेंट होती है। जब वो अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो वो रेस्टिंग स्पोर्स के अंदर उस होस्ट के अंदर फाउंड करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरासाइट है, एक पैरासाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती, एक एंडोपैरासाइट है। Gets released by decay of warts and may remain alive for 40 years in soil. Then ये क्या कह रहे हैं कि जब वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो ये रिलीज़ हो जाती है उन वॉर्ट से, यानी उन सेल से, उन डेड सेल से या उन वेजिकल से ये रिलीज़ हो जाती है और रिमेन अलाइव और ज़िंदा रह सकती है फॉर 40 ईयर्स 40 साल तक इन सॉइल ज़मीन के अंदर। द एक्सोस्पोर burst out but by an irregular aperture and the endospore balloon forms a vesicle within which a single sporangium differentiate. Thus the resting spore act as prosporangium. अब वो यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोस्पोर एंड द सेकंड वन इज एंडोस्पोर। व्हेन एक्सोस्पोर बर्स्ट फ्रॉम एन इरेगुलर अपर्चर, यानी वो बेकायदा एक सुराख सा होता है वहाँ से बर्स्ट आउट होते हैं, और एंडोस्पोर जो है बलून वो एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक एक बर्ड टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, वहाँ से एक सिंगल स्पोरेंजियम डिफ्रेंशिएट करता है और एट दिस मोमेंट जो रेस्टिंग स्पोर है वो एक्ट कर रहा होता है एज प्रोस्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स, यू विल वेरी नो दैट कि स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? Students, it's a life cycle of asexual and sexual reproduction. First of all, we move towards asexual reproduction, as I have told you about asexual reproduction at this moment. Students, if you notice from here that there is a potato tuber which is affected by syncytium. अब हम देखते हैं कि होस्ट सेल को सिंकैट्रियम ने इफ़ेक्ट कर दिया है और वहाँ पे एक ज़ूस्पोर, एक स्मॉल जो है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर एंटर हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में जो है एट स्टेप डी, इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ सिस्ट वॉल। अब ज़ूस्पोर अंदर सेल के एंटर हो गया है और एक सिस्ट वॉल बन गई है। देन वो फर्दर डिफ्रेंशिएट करता है और मैच्योर स्पर्म स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें मज़ीद डिफ्रेंशिएशन होती है और रोजेट्स ऑफ सेल्स में वो कन्वर्ट होता है और आफ्टर अ फ्यू टाइम वो जर्मिनेट कर जाता है इनटू अ समर स्पोर इन द स्टेप जी, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक खुद के अंदर वो एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेता है जिसको प्रोसोरस कहते हैं। देन वो खुद को डिफ्रेंशिएट करता है इन द स्टेप एच। अगर हम देखें तो वहाँ पे प्रोसोरस की जगह ज़ूस्पोरेंजिया ले लेते हैं और समर स्पोर खुद को एम्प्टी कर लेता है। देन ज़ूस्पोरेंजिया इन द स्टेप आई मूव टूवर्ड्स द सोरस एंड एट दिस टाइम द सीजन गोना चेंज, समर और विंटर। देयर आर 2 opportunities for the sorus to select its next life cycle. If there is summer, then क्या होता है कि सोरस स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है इन द स्टेप जे, एंड देन स्पोरेंजियम डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ इनटू ज़ूस्पोर. Okay, you see that zoospore have a flagellum, and this flagellum helps zoospores to move. Now it's ऑन चॉइस कि ज़ूस्पोर जो है वो या तो ख़ुद को रेस्टिंग स्टेज में रखे या वो जो है वो अपना न्यू होस्ट सर्च आउट करके उसको इन्फेक्ट करे और अपना लाइफ साइकिल अगेन से रिपीट कर दे। ठीक है, या फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी यही होगी जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में रीड आउट किया है कि वो ख़ुद को रेस्टिंग स्टेज में रखे और जब उसको मुनासिब एक होस्ट मिले देन
वो उसके ऊपर अटैक करे और अपना लाइफ साइकिल अगेन जो है वो रिपीट करे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ज़ूस्पोर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ूस्पोर की फर्दर ऑन क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम स्पोर्स को क्लासीफाई करते हैं। सम ज़ूस्पोर्स होते हैं, सम्स ओस्पोर्स होते हैं, सम जो है वो एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स। इस तरह से हम देखते हैं कि ज़ूस्पोर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यकीन बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये स्पोर जो है हमारे पास अंडर स्टडी वो ज़ूस्पोर है। जर्मिनेट सेम एज होलोकार्पिक काइट्राइड डू। वो ये कह रही हैं कि ज़ूस्पोर्स बिल्कुल वैसे जर्मिनेट करते हैं जैसे होलोकार्पिक काइट्राइड्स करते हैं। कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन सॉइल वाटर फॉर 2 hours। ज़ूस्पोर्स इतने कैपेबल होते हैं कि वो फॉर 2 hours इन सॉइल वाटर स्विम कर सकें। अब स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजेलम होता है। दैट्स वाई दे मूव और स्विम इन द वाटर। Gradually, a small fungal thallus starts growing inside, causing a rosette-shaped cell surrounding a single infected central cell. रोजेट शेप्ड सेल बना लेते हैं जो कि सिंगल इन्फेक्टेड सेंट्रल सेल्स होता है। हमने पीछे एसेक्सुअल साइकिल में जो है अगर आप नोटिस करें तो हमने रोजेट्स ऑफ सेल जो है यहाँ पे इस जगह पे स्टेप F पे देखा है, सीन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो इस रोजेट्स ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। थिक एंड डार्क ब्राउन कलर्ड सेल वॉल। उन ज़ूस्पोर्स के अंदर थिक और डार्क ब्राउन कलर्ड सेल वॉल फॉर्म होती है। The thallus of fungi settles down at the bottom of cell and covers itself by a chitinous surface. Now it is called prosporus and summer spore. देखिए स्टूडेंट्स कि जो थैलस ऑफ फंजाई है खुद को सेटल डाउन कर लेता है एट द बॉटम ऑफ सेल। ठीक है, जो होस्ट सेल है उसके अंदर खुद को सेटल कर लेता है उसके बॉटम में और ख़ुद को कवर कर लेता है बाय अ काइटिनस सर्फेस। काइटिनस सर्फेस के साथ खुद को कवर कर लेता है। नाउ इट इज़ कॉल्ड प्रोस्पोरस और समर स्पोर। और एट दिस टाइम जब वो खुद को कवर कर ले और सेल के बॉटम में फाउंड करे तो उसको हम प्रोस्पोरस या फिर समर स्पोर कहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वी सी ज़ूस्पोर्स अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए ये जो राउंड सर्कल्स हैं, डार्क राउंड सर्कल्स हैं मेहरून और रेड कलर में, ये ज़ूस्पोर्स हैं अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देन वी मूव टूवर्ड्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ज़ूस्पोर फ्यूज टुगेदर एज गैमीट्स। ज़ूस्पोर्स फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे से और गैमीट बना देते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, यू विल वेरी नो दैट कि इसमें यूजुअली 2 पार्टनर्स मेल और फीमेल की नीड होती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड देन ज़ाइगोट फॉर्मेशन एंड देन फर्दर ऑन अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। लाइकवाइज दैट ज़ूस्पोर्स फ्यूज़ करते हैं एज गैमेट्स। दे आर फ्लैजेलेट, फ्लैजेला होता है, एंड मे स्विम एंड देन फ्यूज़। वो स्विम करते हैं देन फ्यूज़ करते हैं। ड्यू टू सेम मॉर्फोलॉजी दे आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। उनकी सेम मॉर्फोलॉजी, उनकी सेम अपीयरेंस की वजह से उनको आइसोगैमेट्स कहा जाता है। Curtis in 1921 said that zoospore will not fuse if they come from the same sporangium. कर्टिस ने इन 1927 कहा था कि ज़ूस्पोर फ्यूज़ नहीं करेंगे अगर वो सेम स्पोरेंजियम से आएंगे तो। कॉलर इन 1956 said that at first zoospores are not enough to mature to fuse, but with passage of time they become able to fuse with each other and make gametes. कॉलर ने इन 1956 ये कहा था फर्स्ट टाइम कि ज़ूस्पोर्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इतने मेच्योर नहीं होते कि ये फ्यूज़ कर सकें या गैमेट्स बना सकें, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ख़ुद को मेच्योर कर लेते हैं, ख़ुद को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और एबल हो जाते हैं कि ये ख़ुद को फ्यूज़ करें विद ईच अदर और फॉर्म करें अ ज़ाइगोट और गैमेट।
द मैचुरेशन ऑफ ज़ूस्पोर टेक प्लेस विद इन और आउटसाइड द स्पोरेंजियम। अब जो मैचुरेशन है ज़ूस्पोर्स की, यानी उनके अंदर जो डिफ्रेंसिएशन है कि वो खुद को एबल करते हैं फ्यूज़ करने के बाद गैमीट्स बनाने के लिए, तो वो तमाम प्रोसेस मैचुरेशन का आउटसाइड द स्पोरेंजियम होता है और समटाइम जो है वो विद इन द स्पोरेंजियम होता है। ये डिपेंड करता है ऑन द स्पीशीज़ ऑफ सिंकेट्रियम। At first, the zoospores become motile and male, and later on it becomes quiescent और female. फर्स्टली क्या है, जूस्पोर्स मोटाइल होता है यानी वो मूव कर सकता है और मेल होता है, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स क्विसेंट और फीमेल, और बाद में क्या है कि ये मूव नहीं कर सकता और फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। द zygote after forming the encyst itself in the host epidermis and penetrates similar to zoospore. zygote क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेता है, खुद को एक सिस्ट में कवर कर लेता है इन द होस्ट एपिडर्मिस में रहते हुए, एंड पेनिट्रेट सिमिलर टू ज़ूस्पोर, और बिल्कुल वैसे ही पेनिट्रेट करता है खुद को होस्ट सेल के अंदर जैसा कि ज़ूस्पोर पेनिट्रेट करते हैं होस्ट सेल के ऊपर जब वो अटैक करते हैं। zygote infections caused hyperplasia, ultimately causing warts. Student, here is a word is used, hyperplasia. Students, remember that hyperplasia जो है ये uncontrolled division of cells होती है in plants. Likewise, in humans, like cancer. Cancer is also a uncontrolled division of cells in human beings, but in plants it is called hyperplasia. zygote इन्फेक्शन जो है वो काज करता है हाइपरप्लेसिया, यानी अनकंट्रोल डिवीजन हो जाती है उसके अंदर सेल्स की, उस होस्ट के अंदर जहाँ पे वो zygote फाउंड करता है, और अल्टीमेटली वो वार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेक्सुअल साइकिल। We see here from the sorus where the dot is blinking. Sorus have two opportunities here. If sorus move towards the summer, then it moves towards the sporangium and zoospore, and then zoospore infect the tuber, and then asexual cycle is start. If sorus choose the winter cycle, then the process is different. In winter, gametangia are of two types. One is male and the second is female. One gametangium produce gamete and the second one also produce a gamete. And both of these gametes are of same morphology. Okay? That's why further process is called isogamy, or these gametes are called isogametes because both the gametes, मेल और फीमेल हैव द सेम मॉर्फोलॉजी। अब गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए हैं और उन्होंने यूनाइट करना है, फ्यूज़ करना है, ज़ाइगोट बन जाएगा, ज़ाइगोट की फर्टिलाइजेशन होगी और वो ट्यूबर इन्फेक्शन को इन्फेक्ट करने के एबल हो जाएगा, ट्यूबर इन्फेक्शन काज करेगा और रेस्टिंग और विंटर स्पोरेंजियम में कन्वर्ट कर लेगा खुद को। इस कन्वर्जन तक स्प्रिंग सीजन जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद उस रेस्टिंग और विंटर स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी और वो विंटर स्पोरेंजियम ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एबल होगा कि वो अगेन किसी ट्यूबर में इन्फेक्शन काज कर दे या फिर जो है ख़ुद को रेस्टिंग स्टेज में रखे और किसी बेस्ट होस्ट का वेट करे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मेन चीज़ यहाँ पे याद रखने के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो है सोरस ख़ुद को सिलेक्ट करे इन समर सीज़न ग्रो करने के लिए, देन वो फॉलो करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इफ़ सोरस सिलेक्ट करे ख़ुद के लिए विंटर सीज़न अपनी जर्मिनेशन के लिए, तो वो फॉलो करेगा सेक्सुअल साइकिल। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस और डिजीज़ के बारे में बात करें
तो हम देखते हैं कि पोटैटो वॉर्ट इज़ अ सीरियस डिजीज कास्ड बाय अ सॉइल बर्न फंगस सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम। पोटैटो वॉर्ट या वो डिज़ीज़ जो पोटैटोज़ में होती है, ये एक सीरियस डिज़ीज़ है और ये काज करती है एक सॉयल बर्न फंगस जो कि सॉयल के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम। इट इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा ये बात कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जिनका होस्ट लिविंग होता है and they can never live without their host. It is an obligate parasite which does not produce mycelium but an abundance of dissemination sporangia which are responsible for tumor formation on underground potato organs. These sporangia produce zoospores, organ of dissemination and infection. वो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है इन्फेक्शन से, सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम के इन्फेक्शन से कोई माइसीलियम प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो जाते हैं जो काज करते हैं एक ट्यूमर की फॉर्मेशन ऑन अंडरग्राउंड पोटैटो ऑर्गन्स, यानी पोटैटो की अंदर वाली साइड पे, उसके इंटरनल साइड पे, नॉट आउटसाइड, यूजुअली इंटरनल साइड पे वो ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस जूस्पोर्स। ये जो स्पोरेंजिया हैं ये जूस्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन काज करते हैं और वो ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो फर्दर साइकिल को कंट्रोल करता है या फर्दर साइकिल को एक्सीड करता है। अब डिजीज़ तो क्रिएट हो गई, डिजीज़ तो प्रोड्यूस हो गई, अब उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ मेजर्स होना लाजिम है ताकि स्पीशीज़ को जो हमारे पास वेजिटेबल है या हमारे पास कंजम्पशन के लिए कोई मटेरियल है उसको हम अपनी जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो उनको कंट्रोल मेजर्स अगर हम देखें तो वो ये कह रहे हैं कि सिवियर लेजिस्लेशन आर एनफोर्स्ड टू अवॉइड इट्स डिसएमिनेशन इन यूरोप। फॉर एग्जांपल, दिस पैथोजन इज़ अ रेगुलेटेड पेस्ट एंड इज़ क्लासिफाइड एज क्वारंटीन ऑर्गेनिज्म। सिवियर लेजिस्लेशन यानी बस सख्त कवानीन इन्फोर्स करने की ज़रूरत है ताकि ये डिसएमिनेशन ना हो। यूजुअली ये डिसएमिनेशन जो होती है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी लाइक एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है, उसकी वजह से काज होती है। इन केस ऑफ सीड प्रोडक्शन स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स मस्ट बी टेकन। और अगर हम सीड प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी हमें सीवियर लेजिस्लेशन की और स्ट्रिक्ट मेजर्स की बहुत नीड है। ये वॉर्ट है ऑन पोटैटो ट्यूबर। यू कैन सी क्लियरली कि ये वॉर्ट्स क्रिएट हो गए हैं और ये वॉर्ट्स जो हैं यूजुअली हम अगर किसी इन्फेक्टेड पोटैटो में देखना चाहें तो हमें नॉट ईज़िली जो है हमें ये देखने को मिल जाते हैं एक इन्फेक्टेड स्पीशी में जिसको इन्फेक्ट किया होता है सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम, जो कि स्पीशी है सिंकेट्रियम की। उसके बाद हम सिम्टम ऑफ वॉर्ट्स अगर इसके देखें कि जो डिज़ीज़ है एक स्पीशी में जिसको काज किया है सिंकेट्रियम ने, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हो सकती हैं। यूजुअली द डिजीज़ अफेक्ट द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ होस्ट, यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं लाइक इन पोटैटो इट इज़ अ ट्यूबर विच ग्रोज इनसाइड और अंडरग्राउंड सॉइल। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ होस्ट में ये यूजुअली डिजीज़ काज करते हैं। डिजीज पोटैटो ट्यूबर्स अपीयर एज ब्राउन और ब्लैक कॉलीफ्लावर लाइक आउटग्रोथ। उसके अंदर ब्लैक और ब्राउन मतलब आउटग्रोथ्स बन जाती हैं। द फंगस काज द इनलार्जमेंट ऑफ द सर्फेस सेल्स। जो फंगस जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ सर्फेस सेल काज करता है जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं, यानी जो आउटर सरफेस होती है या इनर सरफेस होती है उसके सेल, होस्ट के सेल्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नंबर ऑफ सेल्स इन प्लांट्स अगर इंक्रीज हो जाएं तो हम उसको हाइपरप्लेसिया कहेंगे इन इन्फेक्टेड पोटैटो ट्यूबर्स।
converting them into useless masses of watery tissues. Most of the host cells contain resting sporangia. ज़्यादातर जो होस्ट सेल्स होते हैं उसके अंदर रेस्टिंग स्पोरेंजिया होता है. गाल्स और ट्यूमर्स में बी फॉर्म्ड ऑन एरियल पार्ट्स. गाल्स या फिर ट्यूमर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादातर एरियल पार्ट्स पे प्रोड्यूस होती हैं, लाइक स्टेम्स एंड लीव्स. This is a potato wart. You can see students on a potato tuber. अब होस्ट सेल के अंदर रोजेट्स ऑफ सेल्स भी होते हैं जो किसके हैं, ये रेस्टिंग स्पोरेंजिया के हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जू स्पोर है वो रेस्टिंग स्टेज अपनी एक उसकी होती है जहाँ पे वो ख़ुद को नेक्स्ट जर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको फेवरेबल होस्ट नहीं मिलता और वो ख़ुद को रेस्टिंग स्टेज पे रखता है और वो रोजेट की फॉर्म में होता है एट दैट टाइम. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोटैटो वॉर्ट क्रिएट हुआ है और ये रूट्स हैं उसकी, जहाँ पे ये डॉट ब्लिंक कर रही हूँ मैं. और ये नियर बाय एक पोटैटो था जिसको डिजीज़ ने सिंकैट्रियम ने इन्फेक्ट किया है और वहाँ पे एक वॉर्ट प्रोड्यूस हो गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. इफ़ देयर इज़ क्वेश्चन देन यू विल आस्क me personally or via contact. Thank you so much students for your time. May Allah bless you with success, happiness and health. Ameen ya Rabbal Alameen.